print, the third chapter of Unit-4. So print focuses on on newspaper, ठीक है, newspaper. So print has 5 departments, ठीक है. Print has 5 departments. The first department is editorial, second one is commercial, ठीक है. And commercial includes advertising and marketing. Management या top management बोल सकते हैं. It is the third department of newspaper organization, ठीक है. And technical और distribution बाकी के 2 departments हैं newspaper के. So if we go in detail, ठीक है, of each department, then we'll get to know कि editorial जो department है उसमें usually editors और उसका team होते हैं. They are the ones who prepares the content, ठीक है, prepares the content or gathers news. If we talk about commercial has again 2 things are included in commercial. There are 2 categories basically, advertising हो गया और marketing हो गया. Everything what commercial does is they generate the commercial content, or we can write they look after the advertising, whether it is small or big, ठीक है. Now top management क्या करते हैं? Top management policy, they frames the overall policy of the newspaper. Technical, they focuses on the technical aspects, ठीक है. And distribution, they only focuses on the timely delivery of the newspaper to the distributors, not to the common people, not to the average man, not to us, but to the distributors. Distributors are the ones who are going to deliver it to us, ठीक है. पर जो distribution जो category है, जो department है newspaper का, they only focuses on the timely delivery, looks into the timely delivery of newspaper to the distributors, ठीक है. This is all about the first page where we got to know about the 5 departments and their major responsibility, ठीक है. In the second page we are going to know what headline is. Headline capsule, ठीक है. They are the ones who basically headlines होता है ना, कैप्सूल करता है पूरा स्टोरी, मतलब जो पूरे स्टोरीज़ है उसको वर्ड्स में, कुछ वर्ड्स लिमिटेड स्पेस रहता है तो लिमिटेड वर्ड्स में एक न्यूज़पेपर कॉलम में अच्छे से डिस्क्राइब कर लेता है. इट इज़ नॉट अ समरी बट दे समराइज इट, ठीक है. दे समराइज इट इनटू अ लाइन, इनटू अ 1 सेंटेंस, एंड दे ऑल्सो इंक्लूड और इनकॉर्पोरेट दोज पंच वर्ड्स वी कैन से, ठीक है, विच अट्रैक्ट्स इंडिविजुअल्स. एज इन इंस्टेड ऑफ फ्रॉड दे विल यूज स्कैम, विच इज़ the easier example, ठीक है. There are many more given. और headlines are usually written in historical present tense. Historical present tense में लिखा जाता है and in a positive tone, ठीक है, in a positive tone. That's it. Now we are going to focus on the types of headlines. I'm not going to read it. I'm just going to explain that banner headline होता है. Banner headline क्या focus करता है? They stretches across many columns. They stretches across many columns, ठीक है. उसके बाद box headline के बारे में आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा. If you read, you would understand. You can read it once after I explain. So box headline के अंदर में पता चलेगा that box headline frames are framed basically in a rectangle, in small rectangle, not square, small rectangle, just like a box, ठीक है, इसलिए उसको box headline बोलते हैं. तो banner headline stretches across many column and box headline framed in small rectangle. Multi-deck headline जो होता है, multi-deck headline incorporates 3 categories, like it has 3 categories or 3 parts, 3 types. Again we can say flush, ठीक है. फ्लश लेफ्ट और फ्लश राइट भी होता है. फ्लश लेफ्ट में ऑब्वियसली जो कंटेंट होता है वो प्रिंटेड रहता है फ्लश लेफ्ट में, और फ्लश राइट में जो कंटेंट होता है वो प्रिंटेड रहता है राइट में. क्रॉस लाइन इंक्लूड, इट बेसिकली सेज दैट द कंटेंट एवरीथिंग इज रिटन इन सेंटर्ड इन कॉलम, ठीक है. सेंटर्ड इन कॉलम. और इन्वर्टेड पिरामिड हेडलाइन जो होता है वो ऑब्वियसली लिखा रहता है इन्वर्टेड पिरामिड फॉर्मेट में. नाउ इफ विल गो फर्दर विल गेट टू नो अबाउट news reports and news reports and features. Now the basic question comes that news report और feature का difference क्या है. news report जो होता है वो ब्रीफ समरी होता है, ब्रीफ राइटअप्स होता है ऑफ इवेंट्स, इश्यूज और पीपल. बट फीचर जो होता है वो बेसिकली डिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू होता है. वो ऐसे के फॉर्मेट में लिखा जाता है और ये इन्वर्टेड पिरामिड फॉर्मेट में लिखा जाता है, ठीक है. दे आर रिटन बाय रिपोर्टर्स, स्टिंगर्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंट्स. और यहाँ पे एडिटर्स, फिर असिस्टेंट एडिटर, सीनियर रिपोर्टर लिखते हैं. देयर मेनी मोर पीपल एज वेल, बट दीज आर 3 important people which is mentioned in the book. So we are going to write editor, senior reporter, and then we are going to write सीनियर रिपोर्टर था, एडिटर था, और हाँ असिस्टेंट एडिटर भी था. आई नो इट बिकेम अ बिट क्लमजी, ठीक है. सीनियर रिपोर्टर, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, असिस्टेंट एडिटर, और फिर नॉर्मल मतलब जो एडिटर है वो, और यहाँ पे रिपोर्टर, स्टिंगर्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ठीक है. तो यहाँ अभी 3 पॉइंट हम लोग कवर करें. न्यूज़ रिपोर्ट जो होता है वो बेसिकली ब्रीफ राइटअप्स होते हैं ऑन इवेंट्स, इश्यूज और ऑन पीपल. एंड जो फीचर होता है इट इज डिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ वी टॉक अबाउट न्यूज़ रिपोर्ट. दे आर मोस्टली रिटन इन इन्वर्टेड पिरामिड फॉर्मेट, ठीक है. इन्वर्टेड पिरामिड फॉर्मेट एंड जो फीचर होता है दे आर रिटन इन अ फॉर्म ऑफ एसे. जो राइटअप होता है दे आर बेसिकली रिटन बाय रिपोर्टर्स, स्टिंगर्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंट्स इन न्यूज़ रिपोर्ट आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड फीचर में दे आर रिटन बाय सीनियर रिपोर्टर, एडिटर एंड असिस्टेंट एडिटर. Now the last point which we actually can write is that news report dominate in newspaper, but magazine features take much more space, like take up most space, ठीक है. और यहाँ पे we can write that they are essay like piece of
प्रेजेंटेशन या फिर बोल सकते हैं पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। तो यहाँ पे ऐसे लाइक फिर से ना ऐसे लाइक पीस ऑफ प्रेजेंट publication would be a better term instead of presentation. We can write publications in newspaper and magazine, और यहाँ पे जो they dominate in newspaper and they take most space in magazine feature. ठीक है, magazine features. चलो, that's all about news reports and features. If we go further, we get to know that they expect to give the views and opinions of people in power. So it says that people who are in power they make news, and while the common people they actually don't. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सब एडिटर और रिपोर्टर का जॉब को लेके डिफरेंसेस भी बन सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में करें तो रिपोर्टर का जो जॉब होता है ना वो ग्लैमरस होता है, सब एडिटर का जॉब ग्लैमरस नहीं होता, लेस ग्लैमरस, बट इट इज़ ग्लैमरस। ठीक है, ग्लैमर होता है। अब आगे पढ़े तो पता चलेगा दैट रिपोर्टर्स जो लोग होते हैं ना वो आउट ऑफ डोर मैन होते हैं, इसलिए ग्लैमरस होता है क्योंकि हम लोग दिखते हैं, राइट। बट सब एडिटर्स जो होते हैं दे आर डेस्क मैन and out of door man, they are out of door man with best to cover. ठीक है, and they are well known to paper readers, well known. ठीक है, but the sub editors their hardly names are printed. names जो होते हैं ना वो printed usually नहीं होते। ठीक है, if we go to the second page, what it includes, this paragraph is important because from this paragraph one line was given in the sample question paper. If you go through the sample question paper you will understand. तो इस paragraph में ना basically ये line दे दिया गया था कि reporters और correspondents होते हैं ना, they are like foot soldiers on field. ठीक है, what do you mean by this line? So you are going to write that the primary source of information verify the details and pick up most of the details from, they are the ones who get the information. ठीक है, you are going to write after giving the information they verify. And now how they verify, they go to the spot. ठीक है, they visit the spots, they interview people. Sorry, what happened? Yeah, they interview people. ठीक है, they talk to them, they note down the details, they make notes. ठीक है, they note down the details, they interview them. ठीक है, अब यहाँ पे ना तब उन लोग एक समरी में आता है, एक न्यूज़ में आता है, and then they talk about something. अच्छा, नाउ यहाँ जब रिपोर्टर कॉरेस्पॉन्डेंट्स बनने हैं ना तो इसमें 3 क्वालिटीज़ रिक्वायरमेंट है 3 क्वालिटीज़ का। इंटरव्यूइंग स्किल्स होने चाहिए, लिसनिंग स्किल्स होने चाहिए और पैराफ्रेसिंग स्किल्स होने चाहिए। ठीक है, दीज आर द ड्यूटीज़ ऑफ अ रिपोर्टर। ठीक है, रिपोर्टर कॉरेस्पॉन्डेंट्स के कोई भी तो एबिलिटी है ना उनका टू कंस्ट्रक्ट अ स्टोरी, टू लाइक स्टोरी को अच्छे से कंस्ट्रक्ट करे इन अ कंप्लीट पिक्चर विच इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस जॉब। ठीक है, अलर्ट करना ह्यूमन बींग्स को अबाउट द इवेंट्स, टू बेसिकली make them realize that what is happening in their surrounding, the common people, not only the common people but also the viewers can be anyone, right, common or popular, doesn't matter. Many path breaking stories have been reported by devoted and competent reporters from time to time. These stories have lead to raising public consciousness on issues, so they are the ones who are actually going to satisfy the need of viewers, because there are many people who are very much interested to know something about the story, or even something happens, then they are the ones who are going to satisfy their consciousness. ठीक है, by giving them a proper information. ठीक है, usually sometimes they do give information which can be incorrect. ठीक है, usually it doesn't happen, but yes, at times there are chances, like whatever we see it can be filtered. ठीक है, जो हम लोग पढ़े थे Unit 3 में। ठीक है, चलो इन और लास्ट लाइन में we can just get to know about the roles and responsibilities of editorial management that encourage such practices are equally to be blamed. ठीक है, so obviously management या editors जो होते हैं they are the ones for whom the newspaper is all about hit or successful, whatever we say. यहाँ पे बताया गया है कि एडिटोरियल डिपार्टमेंट में कौन कौन होते हैं। तो ऑब्वियसली रिपोर्टर होता है, एडिटर्स होता है, न्यूज़ एडिटर, सब एडिटर्स होता है, न्यूज़ एडिटर्स होता है, असिस्टेंट एडिटर होता है, और ऑब्वियसली नॉर्मल एडिटर जो एडिटर होता है वो होता है कंपोजिटर, मेकअप मैन, प्रिंटर्स, फॉर्म प्रिंटिंग, मैकेनिकल डिपार्टमेंट। अब मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ना कंपोजिटर या मेकअप मैन और प्रिंटर्स होते हैं, बट इट इज़ नॉट इनफ फॉर द पेपर टू बी एडिटेड एंड प्रिंटेड, इट नीड्स टू बी एडवर्टाइज्ड। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, एंड टू कलेक्ट एंड हैंडल एंड स्टोर, एडवर्टाइज मतलब कौन उसको कलेक्ट करेगा, हैंडल करेगा, हैंडल एडवर्टाइजिंग, दे नीड ऑल्सो डिपार्टमेंट, सो देयर इज कमर्शियल डिपार्टमेंट फॉर इट। Distribution department, 3 departments which are responsible for these activities are advertising, circulation and accounting or accounts department. ठीक है, तो accounting या accounts department या circulation advertising department होते हैं, उन लोग देखते हैं that like what is the regular account needs to be maintained, like ठीक है, regular account have to be maintained, फिर advertised, sold, what this line says, see
जब न्यूज़पेपर प्रिंट होता है या एडिट होता है तो ये मतलब सिर्फ ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक एडिटोरियल डिपार्टमेंट या मैकेनिकल डिपार्टमेंट इनफ नहीं है, ठीक है. इट नीड्स टू बी एडवर्टाइज, ठीक है. टू एडवर्टाइज, टू डू वॉट, एडवर्टाइज, सोल्ड एंड रेगुलर अकाउंट्स नीड्स टू बी मेंटेन्ड. तो ये 3 चीज़ याद रखना. इट नीड्स टू बी एडवर्टाइज, सोल्ड एंड रेगुलर अकाउंट शुड बी मेंटेन्ड. सो देयर 3 डिपार्टमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है. एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, सर्कुलेशन डिपार्टमेंट एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, और वी कैन से अकाउंट्स डिपार्टमेंट. The 5 departments work in close coordination. And that's all about the chapter. So last paragraph may be may sound confusing because starting के chapter में बताया गया 5 department which was not similar to these 5 departments, but yeah, वो 5 departments, basic 5 departments के बारे में बोले ना, तो we are going to write this also, like in coordination, ठीक है, work in close co-coordination. So we are going to write this, and then they talk about the 5 departments of newspaper organization. Then we are going to talk about that, ठीक है. With if the coordination word is mentioned, then we are going to talk about this paragraph where we are saying that editorial department होता है जिसमें editor, assistant editor, न्यूज़ एडिटर, सब एडिटर होते हैं, ठीक है. नॉर्मल एडिटर भी होता है, ठीक है. फिर मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है जिसमें कंपोजिटर होते हैं, मेकअप मैन होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं. और दिस इज़ नॉट इनफ टू बी एडिटेड, फॉर द पेपर टू बी एडिटेड और प्रिंटेड, सो इट नीड्स टू बी एडवर्टाइज, सोल्ड एंड रेगुलर अकाउंटेंट हैव टू बी मेंटेन. सो फॉर दिस अकाउंट 3 not only accounting department but also there are many more, like 3 departments are रिक्वायर्ड, ठीक है. पहला तो है एडवर्टाइजिंग, सेकंड है सर्कुलेशन, और तीसरा है अकाउंटिंग या अकाउंट्स डिपार्टमेंट. दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. इफ आई जस्ट डू अ प्रॉपर recap of this chapter, then it will be like first page में we got to know that in previous chapter as in way before we got to know that 5 departments होते हैं, और उसी का repetition है कि ये 5 departments ये 5 departments हैं, ठीक है. 5 departments यहाँ पे क्या है, एडिटोरियल था, कमर्शियल था. कमर्शियल के अंदर we have to write एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, टॉप मैनेजमेंट, टेक्निकल, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखेंगे. नाउ हेडलाइंस क्या होते हैं, they basically capsule the whole headlines capsule whole story into few words, ठीक है. समराइज़ कर देते हैं पूरे स्टोरी को इन फ्यू वर्ड्स, लिमिटेड स्पेस में. और न्यूज़पेपर के कॉलम में लिमिटेड स्पेस होता है, इसलिए कुछ वर्ड में दे आर नॉट समरीज, ठीक है. उसमें दे यूज़ इंटरेस्टिंग वर्ड्स विच मे अट्रैक्ट व्यूअर्स, ठीक है, रीडर्स, ठीक है. हेडलाइन जो होता है वो हिस्टोरिकल प्रेजेंट टोन टेंस में लिखा जाता है और पॉजिटिव टोन में लिखा जाता है. उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि बैनर हेडलाइन होता है. बैनर हेडलाइन दे आर स्ट्रेचेस अक्रॉस द कॉलम. बॉक्स हेडलाइन दे आर फ्रेम्ड इन बॉक्स इन लाइक स्मॉल रेक्टेंगुलर शेप. नाउ फ्लश हो गया, इन्वर्टेड हेडलाइन हो गया, एंड देन देयर वाज वन मोर, फ्लश था और क्रॉस लाइन था. तो क्रॉस लाइन क्या होता है ना, क्रॉस लाइन दे आर फ्रेम्ड इन सेंटर, दे आर सेंटर्ड इन कॉलम. और जो फ्लश होता है ना, दे आर 2 टाइप्स, फ्लश राइट और लेफ्ट, फ्लश राइट और लेफ्ट. और इन्वर्टेड पिरामिड फॉर्मेट, इन्वर्टेड पिरामिड भी हेडलाइन था. न्यूज़ रिपोर्टर और फीचर्स के डिफरेंसेस के बारे में पढ़े, जिसमें हमको पता चला कि न्यूज़ रिपोर्टर आर बेसिकली राइटअप्स व्हिच आर रिटन इन ब्रीफ अबाउट द इवेंट, पीपल एंड इशू. फीचर्स आर बेसिकली डिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. न्यूज़ रिपोर्ट्स जो होते हैं ना, दे आर इन्वर्टेड पिरामिड फॉर्मेट, एंड जो फीचर होता है वो दे आर इन ऐसे स्ट्रक्चर. न्यूज़ रिपोर्ट्स आर रिटन बाय रिपोर्टर्स, सिंगर्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स. एंड इफ यू टॉक अबाउट फीचर्स, दे आर रिटन बाय सीनियर रिपोर्टर्स, एडिटर्स एंड असिस्टेंट एडिटर. दैट्स इट, ठीक है. जो पीपल पावर में होते हैं, मतलब जिन लोगों के पास पावर होता है, दे मेक न्यूज़. फिर हम लोग डिफरेंसेस सब एडिटर और रिपोर्टर्स के बारे में पढ़े. सब एडिटर का जो जॉब होता है इट्स लेस ग्लैमरस एज कम्पेयर टू रिपोर्टर्स. और सब एडिटर का डेस्क मैन. तो रिपोर्टर्स जो होते हैं ना, वो आउट ऑफ डोर मैन होते हैं. दे गो आउट एंड दे हैव ग्लैमरस जॉब बिकॉज दे आर वेल नोन फॉर द रीडर्स, ठीक है. बट जो सब एडिटर्स होते हैं ना, दे आर नॉट, देयर नेम्स हार्डली गेट प्रिंटेड. एंड इन दिस पैराग्राफ वॉज इंपॉर्टेंट एज आई सेड बिफोर. इसमें रेडियो और कॉरेस्पॉन्डेंट के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है, उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को. विच सेज दैट इन्फॉर्मेशन, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन उन लोग को मिलता है. दे वेरीफाई द इन्फॉर्मेशन बाय विजिटिंग दैट स्पॉट. दे इंटरव्यू पीपल एंड दे नोट डाउन द पॉइंट्स, ठीक है. दे नोट डाउन द पॉइंट्स एंड दे शुड, देयर 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस जॉब इज इंटरव्यूइंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स एंड पैराफ्रेजिंग स्किल्स, ठीक है, फॉर दिस ड्यूटी, ठीक है. दे शुड हैव द एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द स्टोरी, ठीक है. दे शुड अलर्ट ह्यूमन बींग्स इंक्लूड पीपल विद पावर एंड विदाउट पावर, ठीक है. They have many path-breaking stories, ठीक है, path-breaking stories which have been reported by devoted and competent reporters for time to time. So they are the ones who are going to alert people what's happening around them, about their surroundings. That's it. Chapter is all about this, and yeah, we discussed this paragraph. I explained this paragraph thrice, so I'm not going to explain it once again. So that was all about the chapter. This chapter was not that long, but it seems to be long because it has a lot of irrelevant information which is not required to learn, okay. That's it. So thank you for watching. If you have not yet subscribed my channel, so please do subscribe my channel. If you have not yet liked my channel, so please do like it, share it among your friends if you find it helpful, and that's it. Thank you for watching.